Assalamu alaikum. My name is Tahir, and you are watching live HR Consultants Pakistan. First of all, I would like to inform all the viewers that today I'm with Mr. Adi, UCSI University Malaysia representative, and also with our HR admission officer Malaysia, Mr. Saad. If you have any inquiry, you can place your inquiry in comment section or you can call live now 0346 4747 043. We will discuss you about your inquiry. Now over to you, Mr. Saad. Hello everyone and Assalamu alaikum to all viewers. Today we are going to discuss about UCSI University. It's one of the reputed university in Malaysia, situated in Kuching, Kuala Lumpur, and Terengganu. Today we have Mr. Adi, who are going to share updates about university and give us proper information about scholarship and entry requirements and the programs they offer. Thank you, Adi, for taking out time for us. Please give us some intro about UCSI University. Hello everyone, I'm Adi. I'm from UCSI University, known as one of the best private university in Malaysia. And today I would like to briefly share about who is UCSI University in Malaysia. So UCSI University, basically we offer more than 100 programs ranging from business, engineering, architecture, art and design, health sciences, and many more. So UCSI University was actually established since 1986, and in 2019, UCSI has been placed as top 500 in the world based on QS University World Ranking. Okay, and for 2021, UCSI has made it to become top 400 university in the world. To be exact, is 391. So UCSI University has improved its ranking to become 391 university in the world. Okay, and UCSI University, we have 3 campuses located in Kuala Lumpur. We have campus located in Sarawak. We have campus located in Terengganu, and we have more than 10 faculties, offer more than 100 programs to more than 10,000 students. Okay, and we have more than 110 students coming from different parts of the world. We have students coming from China, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Brunei, Vietnam, and many more. Okay, we do offer program for medicine students. We do offer program for engineering, business, and many more. So if you have any question, you may ask in the comment box, then I'll be able to answer accordingly. I would like to tell our viewers and translate it to your viewers. एडी जैसे आप जानते हैं एडी आपको बता रहे थे कि UCSI वन ऑफ द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और इसकी रिकॉग्नाइजेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड है. और अगर हम इसकी बात करते हैं, रैंकिंग्स की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ रैंकिंग के अंदर अगर हम वर्ल्ड के अंदर बात करते हैं 350 और 400 के बीच में इसकी वर्ल्ड रैंकिंग आ जाती है. अगर हम ओवरऑल साउथ एशिया के अंदर बात करते हैं तो टॉप 100 के अंदर भी है ये, ठीक है. और फैकल्टी वाइज भी देखा जाए तो अलग अलग रैंकिंग्स के अंदर ये वर्ल्ड में रैंक कर रही है. दूसरी चीज़ इनके पास एक अच्छी चीज़ ये है कि कैरियर प्रोग्रेशन आपको बहुत अच्छी मिल जाती है UCSI से पढ़ने के बाद. और साथ साथ आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ के वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और आपकी एक बेस स्ट्रॉन्ग बन जाती है. तो UCSI आपको इन चीज़ों के अंदर हेल्प करती है. और इनके 3 कैंपस अवेलेबल हैं मलेशिया के अंदर, जहाँ पे हर टाइप की फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं जो एक इंटरनेशनल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, ठीक है. Eddie, can you tell our viewers about the programs you are offering in KL campus? Okay, in KL campus, we do offer a business program, including business administration. We have marketing program. We have accounting and finance. Okay, we have engineering field also, mechanical engineering, mechatronic engineering, computer engineering, and many more. And also we do offer a music program. We do offer a design program,
Okay, so for those students who would like to study in our program, you may just send your high school result, HSC result. Okay, HSC result, the requirement will be 60%. Okay. Are you offering engineering programs as well? Yes, engineering program is 60%, and student will have to meet physics and maths as well for the engineering program. व्यूवर्स में जैसा आपको बताना चाह रहा था कि आईडी बता रहे थे कि इनके पास हर फैकल्टी के अंदर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, इवन के आर्ट्स के अंदर म्यूजिक एंड थिएटर के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ आईटी के अंदर है, इंजीनियरिंग साइंसेज के अंदर है, मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है, हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड है, तो आपके पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारी फैकल्टीज़ के अंदर। बिजनेस के अंदर भी अगर आप इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी प्रोग्राम्स इनके पास अवेलेबल हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। Eddie, can you tell our viewers about the IELTS requirement? Is there any IELTS required to apply for the UCSI? Okay, for IELTS requirement, yes, we do require IELTS requirement. For bachelor program, basically student will have to achieve a 5.5 for student who would like to study business program. And for students who would like to study business engineering program and other program, we only require IELTS 5.0. But don't worry, for those students who do not have IELTS result, they still can come to study at UCSI. So they will need to study English program first and then obtain required IELTS requirement before can actually join our main program. व्यूअर्स जैसे आप जानते हैं एडी ने बताया है कि अगर आपके पास आइट्स नहीं भी है तो आप वहां जाके पहले आप आइट्स एलिकोस प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके बाद अपना डिग्री प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आइट्स रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है ही नहीं, वो आपकी 5.5 और 5 की रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर कि आप कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर जो स्टूडेंट्स जिनके आइल्स के अंदर कम बैंड्स हैं या उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहां उनका नहीं हो पा रहा तो वो इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं, यूसीएसआई यूनिवर्सिटी को। Eddie, is there any scholarships for the upcoming students? Yes, we do provide a scholarship to those students who achieve a requirement. So if those students achieve 70% in average in HSC, the student will be able to enjoy 15% of education grants. And for those students who achieve 75%, they are eligible to apply for 25% of scholarship. So we do provide 15% and 25%. 15 and 25% on the basis of 70% or 75%. Yes, average in HSC result. Average in HSC result. नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि सुन रहे होंगे बल्कि कि एडी ने जैसे बताया है कि आपके पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अगर आपके 70% मार्क्स हैं एवरेज तो आप 15% की आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगी स्कॉलरशिप, कोई अलग से आपको डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास 75% एवरेज मार्क्स हैं तो आपके पास 25% तक की आपको स्कॉलरशिप अवेल हो जाएगी। What is the average tuition fee in UCSI University? Okay, average tuition fee is about 20,000 ringgit Malaysia to 27,000 ringgit Malaysia. So this is for 1 year. This is only for 1 year program. So 1 year. ठीक है, आप जानते हैं कि बता रहे थे जैसे आईडी की यहाँ जो ट्यूशन फी है वो 20,000 से लेके 25,000 रैंकेट के दरमियान है, और आप इसको पीकेआर के अंदर कन्वर्ट भी कर लेते हैं तो इसका तकरीबन अराउंड अगर देखा जाए तो 13-14 लाख के करीब बनती है जो एक पर ईयर फीस आपकी आ रही होती है। लेकिन ये स्कॉलरशिप के बगैर है, यानी कि स्कॉलरशिप अगर इसके अंदर आप ऐड कर देते हैं तो फिर ये 25% या 15% डिडक्ट हो जाएगी। सो दिस स्कॉलरशिप ओनली एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ईयर और फॉर द scholarship is only for first year tuition fee waiver only, and if the student maintain a good result, achieve a good CGPA in their first year, students still can apply for a scholarship, and it will be subject to a scholarship committee who will need to go through scholarship interview. So there is still opportunity for students to obtain scholarship again.
अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्कॉलरशिप आपकी जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए आगे कंटिन्यूस इसी बेसिस के ऊपर होगी कि अगर आपने एक अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं अपने ऑनगोइंग स्टडीज़ के अंदर सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो सेमेस्टर बेसिस के ऊपर अवार्ड होती रहेगी और वो डिपेंड करता है एडमिशन कमेटी के ऊपर। वो आपका इंटरव्यू लेंगे इस बेसिस के ऊपर कि आपको कितनी % स्कॉलरशिप आगे अवार्ड की जाएगी। तो फर्स्ट ईयर की तो गारंटीड स्कॉलरशिप है। Is there any master programs available in UCSI? Yes, we do offer a lot of different master program. We do have business, we do have science. Okay, so many master program are available at UCSI. We do offer engineering as well. And what is the minimum entry requirement for the master program in terms of CGPA? Okay, CGPA we require 2.5 and above. 2.5 and above CGPA in order to join our master program. अच्छा साहब, मैं आपके नेक्स्ट सवाल से पहले अपने व्यूवर्स को कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसा कि हमारे तमाम व्यूवर्स देख रहे हैं, यूसीएसआई के हमारे साथ आज इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव मलेशिया से अवेलेबल हैं लाइव, और उसके साथ हमारे साथ मिस्टर साद अवेलेबल है। डिस्कशंस हो रही है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वो स्टूडेंट स्पेशली जो मलेशिया जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, एंट्री रिक्वायरमेंट्स पे डिस्कशन हो रही है, आइट्स पे डिस्कशन हो रही है, फी स्ट्रक्चर पे डिस्कशन हो रही है, स्कॉलरशिप्स पे हो रही है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसा कि मैं सुन रहा था अभी रिसेंटली डिस्कशन हो रही है हमारे अपने व्यूवर्स को, इसलिए मैं यहाँ पर डेफिनेटली इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर आप वाकई मलेशिया में जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपनी क्यूरीज को लाइव अभी क्लियर कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में क्लियर कीजिए या फिर कॉल कीजिए 034647474043 पर, क्योंकि स्टडी गैप जो है, इसके अलावा अगर आपका है उसकी बेसिस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है विदाउट आइट्स। आइट्स की भी बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसा कि भी सुन रहे थे। फी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, नॉर्मल रीजनेबल, आप अच्छी डिग्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अभी लाइव कॉल कीजिए, हमारे लिंक को शेयर कीजिए, फिर लाइव कॉल कीजिए 034647474043 पर, आपकी लाइव क्यूरी क्लियर की जाएगी। जी मिस्टर साद, यू कैन कंटिन्यू। जी, मैं व्यूवर्स को ये बताना चाह रहा था कि इनके पास मास्टर प्रोग्राम भी अवेलेबल है साइंसेस के अंदर, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर भी, ठीक है। और उसकी मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट आपकी 2.5 CGPA की है। और जहाँ तक रही आइट्स की, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको और क्लियरिटी कर दूँ। अगर आपके पास प्रीवियस एजुकेशन आपकी इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, तो उस बेसिस के ऊपर भी हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर सबमिट करके हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। आई थिंक मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आए हैं। जी बिल्कुल, इंक्वायरी है। चौधरी माज जी, अस्सलाम वालेकुम। माज, अपना माइक ऑन कीजिएगा, अपना माइक ऑन कर लें माज। जी माज, माइक ऑन। जी अस्सलाम वालेकुम माज, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जी। माज बताइए, क्या इंक्वायरी है आपकी, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा था, मेरे इंटरमीडिएट में है, फर्स्ट ईयर में मेरे 90% मार्क्स हैं ठीक है। और सेकंड ईयर में गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक ऑलमोस्ट वो 92% प्लस बन जाएंगे जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो 3% वाली पॉलिसी है गवर्नमेंट की। तो ठीक उसके हो गया। मुताबिक मैं पूछना चाह रहा था कि मुझे यूसीएसआई में मैक्सिमम स्कॉलरशिप कितना मिल सकता है? तो मास कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके माशाल्लाह से 90% मार्क्स हैं। और दूसरी बात ये कि आप तो जैसे कि एक्सपेक्टेड है कोविड की वजह से जो अनाउंसमेंट थी उसमें 3% और आपके एग्रीगेट मार्क्स मिल जाएंगे 3% के, तो 93 हो जाएंगे। मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ आईडी से। आईडी, स्टूडेंट जस्ट कंप्लीटेड इंटरमीडिएट with 93% marks, so how much scholarship can be awarded to him if he applied in UCSI University? Okay, so for his result is very good. So a minimum of 25%, a minimum of 25% for the first year tuition fee waiver is eligible. So if the student would like to apply higher quantum, higher amount of scholarship, basically student will need to submit the document, and then we will need to schedule interview, and a decision will be from the scholarship committee, because we'll need to be interviewed from everything. Okay, so a student will need to submit a document and then pay the application fee, and then only will be able to arrange for the interview. So
the scholarship can be more than 25%, can be 30% or can be 35%. It will be depending on the interview. मास जैसे आप जानते हैं इन्होंने बताया कि अगर 25% की तो स्टेट अवे आपके पास अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप्स यूसीएसआई के अंदर। अगर आप उससे ज़्यादा के विलिंग हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। और उसमें ये होगा कि आपकी जो एडमिशन कमेटी होगी वो आपका एक इंटरव्यू लेगी, चाहे वो स्काइप पे हो या ऑन कॉल हो, वो डिपेंड करता है। और उसके बाद वो आपको असेस करके बताएंगे वो कितनी मैक्सिमम आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, ठीक है। वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंट्स आप असेसमेंट के लिए हमें सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 034647473031, या फिर हमारे malaysia@hrpakistan.com के आईडी के ऊपर भी प्लेस डॉक्यूमेंट्स आप अपने कर सकते हैं इनिशियल असेसमेंट के लिए। और कोई सवाल आप मास पूछना चाहेंगे? जी मास, कोई सवाल और पूछना चाहेंगे आप? नहीं सिर्फ ये। जी थैंक यू माज, आपने इंक्वायरी प्लेस की और आप अभी फ़ौरन से, जिस तरह मिस्टर साद ने बताया कि इनके नंबर पर फ़ौरन से अपने आप डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, 034647473031 पर या malaysia@hrpakistan.com पर। उसमें होगा ये कि प्लस पॉइंट इसमें होगा कि हम फ़ौरन से डॉक्यूमेंट असेस कर लेंगे और आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए भी इंशाल्लाह अप्लाई कर देंगे। तो अपने फ़ौरन से डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दें ताकि हम फर्दर इसको प्रोसेस कर लें। ठीक है, आप कैमरा जरा उन पे स्विच करें ताकि मैं उनका नंबर नोट कर लूं। मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, 0346, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, 034647473031। ये मैं आपको इनबॉक्स भी कर रहा हूँ, ये देखें आप बेशक। जी ठीक है, ठीक है, ये आपको इनबॉक्स भी आ गया होगा। तो ये नंबर अभी अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर लें ताकि फर्दर असेस कर लें इसको। थैंक यू सो मच फॉर योर इंक्वायरी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मास। जी साथ he will going to submit the documents for the initial assessment. So All right, thank you very much. Yeah. Eddie, kindly tell us about the campus life in KL campus in UCSI. Okay. What are the facilities available on campus? Okay, so in the campus, we have a different type of facilities. We have a swimming pool, we have accommodation. So for those new international students, we do provide on-campus accommodation and also off-campus accommodation. And we do provide sport facility such as a basketball court, and then we have badminton, okay, we have gyms, we have swimming pool, okay? And then we have many different type of extracurricular activity for students to join. Okay, and the best thing about UCSI University is that we do provide internship to all of our students, meaning to say that when students study with us, not only studying, but they also get to know and work in the company to gain the real life working experience. So not only studying. So when they study in UCSI University, they can gain a real life working experience, and not only one time. Not only one time, meaning to say that every year we'll have internship. So these kind of things will be added value to the student in their resume. So they have a good experience, and if they maintain a good relationship with the company, with the employer, perhaps before the student graduated, they can be hired. So this kind of arrangement, this kind of benefit, student will be able to enjoy if they study in Malaysia. And in Malaysia, study in Malaysia, living expenses is pretty low. Okay, for the other facility like for visa, student visa, we will be able to help the student to apply for visa and then renew visa. Okay, and basically in Malaysia you can find different type of foods in the campus itself. We do provide canteen. We do have canteen. So students when they study in Malaysia, they can enjoy a variety of food. Food will be Malaysian food, Chinese food, Indian food, and many more. Okay. That's perfect, and it's a great news for the international students.
आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल व्यूअर्स, अगर आप यूसीएसआई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो हर ईयर के अंदर आपको ये वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको इंटर्नशिप्स है जो आपको हर साल ऑफर हो रही है। उसकी अच्छी बात ये है कि आपको एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल जाता है ड्यूरिंग स्टडीज़, जो आपको हेल्प आउट करता है आफ्टर कमीशन ऑफ डिग्री प्रोग्राम, आपकी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को किसी एम्प्लॉयर के पास अपने आप को अकोमोडेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है अपनी ड्यूरिंग डिग्री प्रोग्राम के अंदर। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज, हाई रैंक यूनिवर्सिटीज सिर्फ कोर प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, जिसके अंदर आपके साथ में जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं उसी साल के दौरान। Eddie, one of the most important question, and everybody wants to know about the on-campus studies. So when you are going to plan for the on-campus studies, and what are the upcoming intakes of UCSI? Okay, so for the intake, we do have intake in January, we do have intake in May, and then we do have intake in September. So 1 year there will be 3 intake: January, May, and September. Okay, and as of now, due to COVID-19, at the moment, for new international students, we will provide online learning and online classes. Due to COVID-19, this year, the study will be completely online for those students who are staying outside Malaysia. Meaning to say that if the students are still staying in Pakistan, the learning for this year will be online classes until further notice, until COVID-19 cases in both countries is stable, then only we will be able to allow new students to come into Malaysia. ओके, व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं, एडी बता रहे थे कि अभी जो है वो ऑन कैंपस स्टडीज हैं अवेलेबल, और इनके जो अवेलेबल इंटेक्स हैं वो जनवरी, मई एंड सितंबर है, ठीक है। और अभी एप्लीकेशंस ओपन है। अभी जो है वो ब्लेंडेड स्टडीज़ कहलाएगी, यानी कि अभी होपफुली कि ये जो पेंडेमिक है ये इंशाल्लाह ओवर हो जाएगा सून। तो इसमें यह है कि आप अभी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, सिर्फ आपको बॉर्डर ओपन होने का इंतजार करना होगा। वीज़ा आप पहले से अप्लाई कर सकते हैं, प्री वीज़ा अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा EMGS से, ठीक है। अगर आप वीज़ा की सबमिट करते हैं उसकी बेसिस पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपको एक तरह से आप एक स्टेज क्लियर कर चुके हैं वीज़ा की। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि बॉर्डर आपके ओपन होंगे और आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो इसमें कोई घबराने की और वरी होने की बात नहीं है, क्योंकि मलेशिया के अंदर अच्छी बात ये है कि मलेशियन गवर्नमेंट ने और EMGS ने ये अपडेट फराहम कर दी है कि वीज़ास ओपन हैं, पोस्ट कोविड के अंदर किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, उसकी भी उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन EMGS की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। सो आप अभी चाहें तो ऑनलाइन के लिए अकोमोडेट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें प्लेस कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर और हमारी ईमेल आईडी के ऊपर। Eddie, now we are going to end this session. Thank you so much for taking out time for us and give us brief information regarding the UCSI, about their scholarship, about the programs, about the post-COVID-19 plans. And thank you so much. Okay, thank you so much, everyone, and stay safe, stay healthy, and I shall see you again. Thank you. Over to you, Eddie. Jay, thank you so much to both of you, and especially thanks to Mr. Eddie and Mr. Saad that both of you that you join us today. And मैं अपने तमाम व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसा कि आपने आज हमारी डिस्कशन सुनी है UCSI की, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आइट्स से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर बहुत रीज़नेबल है। वो स्पेशली स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं बहुत परेशान हैं कि अपने स्टडी गैप की वजह से वो अपनी स्टडी को कहीं फॉरेन स्टडीज़ में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी स्टडी को यहाँ पर कंटिन्यू करें। 1 या 2 ईयर का स्टडी गैप जो भी आपका है, जो भी आप यहाँ पर स्टडी करेंगे उसको अकॉर्डिंगली आप UK, USA या फिर ऑस्ट्रेलिया में अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका टाइम वेस्ट जो ऑलरेडी हो चुका है वो सेव हो जाएगा और आप अपनी जो क्रेडिट आवर्स हैं वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो मलेशिया जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए। और कमिंग जैसा कि आपने सुना है कि एडमिशन्स ओपन है, यूनिवर्सिटीज़ जो है UCSI जो है यूनिवर्सिटी जो एडमिशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, प्रोसेस हो रहे हैं एडमिशन्स।
और वीज़ास भी इंशाल्लाह अनकरीब प्रोसेस होंगे। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से अभी अप्लाई कीजिए, बहुत राइट टाइम है अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले हमें फॉरवर्ड कीजिए 034647473031 पर, या फिर हमारा ईमेल है malaysia@hrpakistan.com पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजिए, ताकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड हो सकती हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए। हमारे ऑलरेडी इंशाल्लाह ऐसे ही मलेशिया के सेशंस कंटिन्यू रहेंगे हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव के साथ। इनको मिस मत कीजिए। अगर आप वाकई में मलेशिया स्टडी जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए ये बहुत हेल्पफुल सेशंस होते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट अपडेट्स प्रोवाइड की जा रही हैं कोविड-19 से रिलेटेड, आइएलटीएस से रिलेटेड, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ओवरऑल जो है यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो हमारा आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। वंस अगेन थैंक यू टू बोथ ऑफ यू दैट यू जॉइन अस टुडे। और मैं अपने तमाम व्यूअर से भी कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, ऐसे ही हमारे सेशंस के साथ कनेक्ट रहिए हमारे एचआर के फेसबुक पेज पर, और अपनी इंक्वायरीज़ को प्लेस कीजिए। इंशाल्लाह एचआर आपको कंप्लीट फैसिलिटेट करेगा। तो आज का मैं अपना सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अपने तमाम व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।